Good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all in our regular program, which is known as Thame Speaks. Thame Speaks is a program which covers a wide range of activity which are taking place in UK, and we also discuss with a wide range of speakers. Story of Thames will be always incomplete if I will not include the story from the desert of Rajasthan. It has added a pinch of salt in the history of UK. I'm talking about the story of Bikaner, and I'm also talking about Maharaja Ganga Singh Ji, the person, the prince who was mentioned in World War I. If we will talk about history and if we will discuss about World War I, you will find the name of Maharaja Ganga Singh Ji. He was the person, or maybe I can put in this way, he was the first non-white member of Imperial British War Committee. He was also the signatory of Treaty of Versailles in 1919. And he was also a prince who modernized Bikaner and the surrounding areas. There are a lot of things which we can see in today's world, especially in British history, and you will find his contribution. So that's a pinch of salt from Bikaner in the history of UK, in the history of Thames. From the same Bikaner, we got a person who, in this modern world, he has done an Herculean task. He has presented his lectures on digital archives and resources in British Library, in Exeter University, in Pennsylvania University, USA. He has also received a lot of awards and laurels from prestigious organizations and governments. He loves, as a typical Indian, he loves cricket. He represented different states and city teams, and even in Ranji Trophy. He hails from Bikaner, and he is Director of State Archives since 2006. There's a special reason why he is in the show today, and I would like to tell you about his work. I would like to tell you about what will be the impact of his work in the future generations. So I would like to welcome Dr. Mahendra Khargawat in our program. Welcome, Mahendra ji. Good evening. Thank you. Good evening. Thank you, Harindra ji. It's really nice to have you on this platform. We were discussing about a lot of things, especially there's a very close connection between the history of Bikaner and history of UK. And probably you are building a new bridge between these two histories today. I know, इतिहास बनाना सरल है, इतिहास में जीना सरल है, इतिहास की तरह की चीज़ें करना और आसान है, पर इतिहास को बनाकर रखकर सहेजना और संवेरना बहुत मुश्किल काम है. मुझे याद है फेमस कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने किताब लिखी, उन्होंने किसी सामंत से एक बार पूछा कि आप लोगों का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा, उसे आज तक आप सहेज कर क्यों नहीं रख पाए. तो उन्होंने बहुत साधारण शब्दों में कहा कि हमारी कौम लड़ने भिड़ने मरने और रक्षा करने में ही रह गई. उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सहेजा और संवेरा जा सकता है. आज का वो युग जिसमें लोग इतिहास को बदलने की कोशिशें करते हैं, वो युग जिसमें लोग मौका पड़ने पर अपने पिता दादा और परदादा को बदलने की कोशिश करते हैं, उस दौर में जब हम उन सारे ऑथेंटिक रिसोर्सेज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे सामने आते हैं. और शायद वो कोशिश, आज की जो कोशिश है, उसका फल सिर्फ अगले 1-2 सालों के लिए नहीं, शायद हो सकता है कि अगले हज़ारों सालों तक रहे. ऐसी कुछ कोशिशें होती है. कुछ काम ऐसे हैं कि सुबह काम किया, उसका फल शाम को मिल गया और दूसरे दिन नया काम करना पड़ा. पर कुछ ऐसे काम भी हैं जिसे लोग युगों युगों तक याद रखते हैं. वेद किन ऋषियों ने लिखे होंगे, किन लोगों ने वेदों की उन ऋचाओं का संकलन किया होगा. महर्षि वाल्मीकि ने या तुलसीदास जी ने रामायण लिखी होंगी. उन्होंने उस दौर में कभी नहीं सोचा कि ये चीज़ें आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर डालेगी. ठीक उसी तरह माना जाता है कि सरकारों का काम है सरकारी चीज़ों को और सिस्टम को अच्छे से चलाना, पर
जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भविष्य को देखकर होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये कुछ ऐसा काम है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा. सो वेलकम महेंद्र जी. एंड आप, you are an expert. Please tell me about the State Archives Department and what type of archives are present there. नमस्कार हरेंद्र जी, गुड इवनिंग। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मैं डायरेक्टर हूँ 2005-06 से। आज़ादी से पहले राजस्थान में 22 रियासतें थी, 19 ठिकाने, 19 रजवाड़े और 3 ठिकाने। उन 22 रियासतों का हर एक का अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम था, ऑफिशियल रिकॉर्ड था। उन सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड को एक जगह करके 1955 में जयपुर में यूनिक रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से राजस्थान राज्य अभिलेखागार का गठन किया गया। 63 में, जैसा कि आपने कहा महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में, महाराजा गंगा सिंह जी जब इंग्लैंड बहुत बार आए, उन्होंने बिस्मार्क का एक छोटा सा रिकॉर्ड रूम देखा। उस छोटे से रिकॉर्ड रूम को बीकानेर में उन्होंने अपने स्टेट के मुहाफिज खाने के रूप में एक बहुत बड़ा रूप दिया, जिसको आज हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। आपके पास फोटो भी है तो उसको जरूर दिखाइए। 65 के अंदर इसका मुख्यालय बीकानेर कर दिया गया और उसके 7 ऑफिस हैं राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा और अजमेर में। 1900 से पहले तक का रिकॉर्ड, 1900 तक का रिकॉर्ड सारा का सारा राजपुताना का मुख्यालय बीकानेर में है और 1900 के बाद का रिकॉर्ड उसकी रिपोजिटरीज, उसकी शाखा कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं, अगर किसी को मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अध्ययन करना है, अगर किसी को मध्यकालीन भारत के इतिहास पर रिसर्च करना है, शोध करना है, उस पर कोई विवेचन करना है, विश्लेषण करना है, तो उसको राजस्थान राज्य अभिलेखागार आना ही होगा। क्योंकि भूतपूर्व जितने भी रजवाड़े थे वो सब के सब मुगलों के संपर्क में थे। जयपुर, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़, ये जितने भी सिरोही, ये जितने भी रजवाड़े थे, ये सीधे मुगलों के संपर्क में थे। मुगल मनसबदार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और मुगलों के जो संपर्क में नहीं थे, जैसे कि इतिहास प्रेरणा लेता है, वर्तमान प्रेरणा लेता है और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा लेगी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राणा, तो मेवाड़ के राणाओं का इतिहास भी आर्काइव्स में है। तो अगर किसी को मध्यकालीन भारत के इतिहास पर अध्ययन करना है, ब्रिटिश इंडिया का वो रिकॉर्ड जिसने आजादी के आंदोलन के अंदर राजस्थान के लोगों को हंसते हंसते बलिदान देते हुए देखा, अपने प्राण न्यौछावर करते हुए देखे। किस प्रकार से, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि राजस्थान के अंदर आजादी के संघर्ष से लेके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का किसान आंदोलन, प्रजामंडल, इससे संबंधित सारा उस समय की जो रजवाड़ों का जो कॉन्फिडेंशियल पुलिस रिकॉर्ड था, आईजी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड था, वो सारा आर्काइव में आ गया। और आर्काइव में आने के कारण आप ये देखेंगे कि ये आजादी जो हमें मिली, अभी हम कितनी मुश्किल मिली, उसके लिए क्या लोगों ने अब त्याग किए, उसके लिए उन्होंने क्या क्या परेशानियां झेली, वो एक बहुत, उन सब का आपसे यही कहना चाहता, उस जमाने के हिसाब से लोगों ने कैसा खींचा, ये बहुत बड़ी देखने वाली बात है। आज मैं बैठकर 100 साल पुरानी घटनाओं पे कमेंट करूं उसमें, और उसी समय होने वाली घटनाओं में सरकार या दूसरे लोग कैसा सोचते हैं, वो कमेंट, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मेरे देखने के नज़रिए में मेरे इमोशंस और मैं देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने विचारों को बदल सकता हूँ, पर वो उस समय समसामयिक थे, उस समय के तात्कालिक विचार थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहे। लगभग कितने डॉक्यूमेंट्स और उस आर्काइव्स में है? लगभग 40 से 45 करोड़ डॉक्यूमेंट्स राज्य अभिलेखागार में है और सारे पेपर फॉर्म में, सबके सब डॉक्यूमेंट पेपर फॉर्म में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 95% से ऊपर रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है। ये एक बहुत, वो देश या वो
इलाका जो हमेशा युद्ध, संघर्ष और मैं कह सकता हूं कि जिसे कहते हैं राम और राज, दोनों की पीड़ा जिसने झेली, मतलब जिसने दूसरे लोगों से और राज से भी संघर्ष किया, और राम मीन्स जिसने अकाल झेले, जिसने दुष्काल झेले, जिसने विपरीत परिस्थितियां झेली, इन दोनों के बीच में इतने सारे रिकॉर्ड को रखना, फिर उसको सहेज के संभाल कर रखना, ये एक अमेजिंग चीज़ है। मैं उस विषय पे बाद में आऊँगा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी का और इन सब का क्या कनेक्शन है, बट दिस इज आई थिंक इंडियाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द फाइनेस्ट एंड मे बी इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। ये ऐसा विचार आपके मन में कब आया और क्यों आया? मेरे हिसाब से आप डिजिटाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं। 2005-6 में जब डायरेक्टर बना था, दो तीन चीजें थी। नंबर वन, जो हमने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, जो मुगल बादशाहों ने जो फरमान लिखे राजपूत राजाओं को, वो लॉक एंड की में थे। आर्काइव्स के ऑफिसर को भी देखने की इजाजत नहीं थी। मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि जिस दिन मेरे को अथॉरिटी मेरे हाथ में आएगी, ये आम जनता के लिए इसको ओपन करना है। नंबर टू, जो रिसर्च स्कॉलर्स आते थे उनको क्योंकि बीकानेर एक सीमांत प्रदेश है, अगर किसी को इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस या यहाँ से रिसर्च करने के जो आते थे तो बहुत मुश्किल होती। और हिंदुस्तान की भी जो डिफरेंट स्टेट्स की यूनिवर्सिटी है, वहां से भी जो स्कॉलर्स आते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होती। और एक बार जो आ जाते थे, और उनको अगर मान लीजिए 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद अगर रेफरेंस के रूप में उस रिकॉर्ड को देखना पड़ता था तो दोबारा वहां नहीं आ पाते थे। दूसरा कारण ये कि राजस्थान आर्काइव्स के अंदर राजस्थान पूरे के 1953 तक का लैंड रिकॉर्ड है। लोग अपने घरों और मकानों के पट्टे या एग्रीकल्चर लैंड के पट्टे लेने आते थे, तो 4-4, 5-5 महीने तक उनको सिर्फ हाँ या ना, आपका पट्टा है या नहीं, ये कहने के लिए उनको 4-4, 5-5 महीने इंतजार करना पड़ता। तो 2005-6 में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लोगों के घरों के मकानों के पट्टे, जो बीकानेर डिवीजन के थे लगभग 2.5 लाख, उन पट्टों को डिजिटल किया, उनमें से सर्च ऑप्शन निकाले, इजी रिट्रीवल सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको कियोस्क में डाला और ऑनलाइन कर दिया। उस प्रोजेक्ट की सफलता ये हुई कि जिन पट्टों को ढूंढने में 4-4, 5-5 महीने मिलते थे, 5 सेकंड एक मिनट के अंदर वो अपने आप पट्टा देख लेते हैं और एक ही दिन में अपनी सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं। और आज की डेट तक हमने 1,25,00,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल करके ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया है। कहीं से भी देश और कोई भी स्कॉलर, कोई भी आम जनता निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देख सकता है और राउंड द क्लॉक उस पर अध्ययन कर सकते हैं। पट्टों से मुझे एक चीज़ और ध्यान में आई। पुराने ज़माने में गौचर के नाम से, मंदिर के नाम से, ओरण के नाम से हज़ारों लाखों बीघा ज़मीन राजाओं ने, सामंतों ने, लोगों ने छोड़ी। प्रजातंत्र के आने के बाद उस ज़मीन पर लोगों ने कब्जा किया, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, और जो एक इकोसिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हज़ारों सालों से रहकर, सीख कर, उसको 30-40 सालों में ध्वस्त कर दिया। शायद वो जो पट्टे हैं वो उस इतिहास की गवाही देंगे कि इंसान को सिविलाइजेशन की कंटिन्यूस जर्नी में कैसे रहना चाहिए और किन चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। I also witnessed a bit. You visited British Library, you visited Pennsylvania University and Exeter University in UK. You have presented your ideas that how Rajasthan Archives is leading all these archive systems in the world. How was your experience? 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने मुझे जब बुलाया था डिजिटल आर्काइव पे प्रेजेंटेशन के लिए, वहां के साउथ एशियन स्टडी सेंटर के जो डायरेक्टर थे, उनका यही कहना था कि आप हमें 2-3 मैटर है। एक रीजनल आर्काइव्स ने साउथ एशिया के जितने भी आर्काइव्स हैं वो वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, पदों की कमी है, तो हिंदुस्तान के रीजनल आर्काइव ने इतना बड़ा काम कैसे किया? हमें नंबर 1 ये बताइए। नंबर 2, आपने फंड कहां से इकट्ठा किया? नंबर 3,
आपके पास पदों की कमी रहते हुए भी आपने इस कार्य को कैसे अंजाम दिया और आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना? वहां पर जब फर्स्ट डे मेरा लेक्चर था तो मुझे 45 मिनट्स दिए गए थे। जब आधे घंटे बाद ही एक पर्ची आती है कि प्लीज कंटिन्यू, लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा वहां बाद में वो प्रेजेंटेशन चला और सेकंड डे ओपन कम्युनिकेशन था ओपन स्टूडेंट्स के साथ में। तो उनको वो लोग इस चीज को देखे बिल्कुल हाथ फरक थे, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और इंग्लैंड हिंदुस्तान से बहुत आगे है। जमीन आसमान का लेकिन फर्क। बट एक मैं चीज आपको है बता रहा जिसको हूँ, मैं कहना चाहूंगा, मादा और हिम्मत शायद मैं कह सकता हूं कि जो गांव या जड़ों से जुड़े हुए लोगों में होती है वो शायद दुनिया के किसी आदमी में नहीं। हिंदुस्तान का आदमी कहीं भी रह सकता है, वो माइनस। मैं आपको जैसे बीकानेर का बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स, ये इतना बड़ा जो डॉक्यूमेंट्स का खजाना है, इसको सुरक्षित रखने में आप देखिए गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर और सर्दी में 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन हो गया। हम 1,25,00,000 से ज्यादा 1,25,00,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट का डिजिटाइजेशन कर चुके हैं और आज भी हम 4 से 5,000 डॉक्यूमेंट प्रतिदिन डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे नहीं लगता कि शायद दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी या आर्काइव डिपार्टमेंट के पास इतने डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्ड फॉर्मेट में है। और 2018 में जब मैं हरेंद्र जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जीटर ने मेरा प्रेजेंटेशन ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा था, लगभग 3 घंटे के प्रेजेंटेशन के पश्चात मुझे याद है एशियन और अफ्रीकन सेंटर की जो हेड है मैडम लुइस नाम होगा शायद उनका, वो मुझसे लास्ट तक यही पूछती रही कि आपने इस कार्य को कैसे किया। मैंने कहा विद ग्रेस ऑफ गॉड, बोले ये दिस इज वेरी इजी आंसर। आप मुझे ये, क्योंकि उन्होंने भी मुझे अपना बहुत सारा, उन्होंने उनका सेटअप बहुत अच्छा था, ब्रिटिश लाइब्रेरी भी डिजिटाइजेशन कर रही थी, लेकिन वो जब प्रेजेंटेशन चल रहा था तो मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया, तो उन्होंने, वो मेरे पास में ही बैठे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये मैसेज क्या है। मैंने कहा आज इंडिया के अंदर मेरे ऑफिस में कितना नंबर ऑफ डिजिटाइजेशन पेजेज हुए हैं उसकी ये रिपोर्ट है। तो बोले कितने हुए? मैंने कहा 10,000। बोले वन डे, एक दिन में 10,000। मैंने कहा ये बहुत कम है। बोले ये कम है। बोले कहना कि हम हमारे कर नहीं पूर्वजों ने पाते। जितनी तेजी से इतिहास बनाया है, हम उतनी तेजी से उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। ये एक हमारे कंटिन्यूस जर्नी का पार्ट है। हरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान के बारे में, मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान के बारे में ये है कि हमें किसी नवीन निर्माण की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो धरोहर है, जो विरासत है, जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो धरोहर विरासत में हमें मिले, हम उसको सुरक्षित और संरक्षित रख लें, तो ये एक बहुत बड़ा उपहार होगा आने वाली जनरेशन को। ये दुनिया को बहुत बड़ा उपहार होगा। मैंने खुद ने कुछ किताबें देखी। मैंने रिसेंटली विंसर कैसल में एक आर्काइव्स डिपार्टमेंट है, उसमें से किसी ने एक बुक पब्लिश की है कि जो बाबर और अकबर की जो लाइफ है, उन जो पेंटिंग्स हैं उनकी, उनको उन्होंने सारे पेंटिंग्स को फोटोग्राफ करके दे पब्लिश्ड अ बुक। मेरी कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, उनके पास उसका एक कॉपी है। सो मैं उस कॉपी के थ्रू जा रहा था तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि हर पेंटिंग की उन्होंने डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया कि ये पेंटिंग हिस्ट्री में चीज़ों को कैसे दिखाती है, लोगों का पहनावा, लोगों का खान पान, लोगों का चरित्र, लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट और उस जमाने का जो प्रोटोकॉल था वो एक ही पेंटिंग में समाहित था, जो मुझे लगता है कि एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग आदमी को चाहिए। इसी विषय पे एक ये भी है कि उस जमाने में बड़ी खतो किताबत होती थी, राजस्थान के अलग अलग राजाओं के बीच में, मुगलों के बीच में, और ऐसे ऐसे खत लिखे जिन्होंने दुनिया की हिस्ट्री को बदला है। मैं 2-3 चीज़ें कह सकता हूँ। मैं बड़े लोगों के खतों पे नहीं जाता, लेकिन एक खत पे जाऊंगा कि जैसे पीथल और पाथल की कविता में भी एक खत है जिसमें मानव को लास्ट में ये जिन्होंने कहा, पीथल रे खिमता बादलरी जो रोके सूर उगाड़ी ने, सिंगारी हाथल सैलेवे कद सिंगारी हाथल सैलेवे को कूख मिली कद शाली ने। ये इस तरह की अलग अलग कविताएं हैं। या फिर चेतावनी का चुंगटिया, वो भी एक पत्र था। तो इस तरह के कई लेटर्स हैं। उन्हीं लेटर में से, उन्हीं फरमानों में से जो स्पेशली उस ज़माने में फ़ारसी फरमान थे, उस पर आपका क्या काम रहा?
हमारे राजस्थान राज्य अभिलेखागार के अंदर 327 फरमान है। देखिए, फरमान तीन टाइप में होते थे, फरमान, निशान और मंसूर। फरमान वो थे जो एम्परर की तरफ से जारी होते थे, रॉयल ऑर्डर। निशान उनकी फैमिली मेंबर की तरफ से, मतलब उनके लड़के, शहजादे, शहजादी, उनकी बेगम की तरफ से जो जारी होते थे, घर के किसी सदस्य की तरफ से। और मंसूर वो थे, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया लेकिन वो लीगल बादशाह नहीं बना था। उस दौरान उसने जितने भी ऑर्डर जारी किए, वो 22 ऑर्डर राज्य अभिलेखागार में। हमने इन 327 जो पर्शियन में है, इनको 4 वॉल्यूम 2010 में हमने इसको स्टार्ट किया, इस प्रकाशन योजना को। फारसी फरमानों के प्रकाश में मुगल कालीन भारत एवं राजपूत शासन, वॉल्यूम 1, 2, 3, 4। और 4th वॉल्यूम आपको मैं बताऊंगा कि 2018 में हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी में ही रिलीज किया था। इन चारों फरमानों, 327 फरमानों को 4 वॉल्यूम में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन 327 फरमान के इतिहास जगत के सामने आ जाने से, शोधार्थियों के सामने आ जाने से मध्यकालीन भारत का इतिहास बदल रहा है, परिमार्जित हो रहा है, उसमें नए तथ्यों का समावेश हो रहा है। नंबर 1, वार ऑफ सक्सेशन, जो मुगल इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, उसके 64 फरमान हम पहली बार इतिहास जगत के सामने लेके आ रहे हैं। वार ऑफ सक्सेशन की पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। इस प्रकार से शाहजहां एक के बाद एक 7 फरमान लिखता है मिर्जा राजा जय सिंह को कि आप आइए और शाही सेना में सम्मिलित हो जाइए। लेकिन प्रारंभिक युद्ध के पश्चात एक कूटनीतिक तरीके से मिर्जा राजा जय सिंह एक जगह अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं, तटस्थ कर लेते हैं, युद्ध से अपने आप को अलग कर लेते हैं। और जब युद्ध औरंगजेब के पक्ष में जाता है तो औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को एक फरमान लिखते हैं कि मैं तुम्हारे किए हुए शुक्राने का 1000वां भाग भी अदा नहीं कर सकता। मैं, जहां तक मेरा अनुमान है कि मुगल इतिहास में किसी भी मुगल बादशाह ने किसी मनसबदार को ऐसा अपमान कभी नहीं लिखा। ये जो चीज़ें हैं, मैं मिर्जा राजा जय सिंह और बाकी इतिहास पे और चर्चा करूंगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये उस ज़माने की हकीकत थी। आज हमारा नज़रिया अलग हो सकता है, आज हमारे नज़रिया हमारे स्वार्थों से, हमारे पॉलिटिकल स्वार्थों से या हमारे दूसरे सिद्धांतों से प्रभावित हो सकते हैं, पर उस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य अभिलेखागार किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं होकर जो दस्तावेजों में जो सत्य लिखा है, सिर्फ उसको आम जनता और इतिहास जगत के सामने लाना चाह रहा है। और पिछले 15 सालों में हमने बहुत सारे प्रकाशन और डिजिटल अभिलेखागार के माध्यम से देश और दुनिया को बताया कि रियल हिस्ट्री क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद कि राज्य अभिलेखागार, आर्काइव्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। तब तक लेते हैं हम एक ब्रेक। Welcome back. We are enjoying Theme Speaks, and we are talking and discussing with one of the esteemed guests, Dr. Mahendra Khadgawat. It is said, Manuj Dagd se, Danuj Rudhir se. It is said, Manuj Dagd se, Danuj Rudhir se, Amar Sudha se जीते हैं, किंतु हलाहल भव सागर का शिव शंकरी पीते हैं। आदमी है वो दूध से, जो दानव है वो खून से, और जो अमर है वो सुधा मीन्स अमृत से जीते हैं। पर शिव ऐसा है जो इस पूरी दुनिया का, पूरा जो आसपास का ताना बाना है वहाँ का जहर पीते हैं। ये आसान काम नहीं है दुनिया में इतने बड़े काम को करना। सिर्फ अमृत या दूध नहीं है, यह जहर है, और एक ऐसा जहर जिसमें हजारों परेशानियां, हजारों झंझावत आती हैं, लेकिन आदमी एक सिद्धांत पे काम करता है जिसे वेदों में कहा है चैरवती चैरवती, मतलब आप चलते रहो और धीरे धीरे वो एक रास्ता खड़ा हो जाएगा। शायद उसी जो रास्ता बन रहा है भविष्य की उस पगडंडी पर हमें एक नई रोशनी दिखाता है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर महेंद्र खड़गावत साहब से कि इन सारे आर्काइव्स जो डिजिटाइजेशन हो गए, जो एक वेबसाइट पर अवेलेबल हैं फ्रीली, आप अपने घर के कंफर्ट जोन में, स्पेशली जो राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास है उसके जो
असली डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप घर बैठकर पढ़ सकते हैं। स्पेशली ये जो कोविड का लॉकडाउन था उसमें लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में छोटी चीज़ों या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बजाय उन्होंने उन असली डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान देकर ज़िंदगी में एक नई चीज़ हासिल की। Recently, the archive department has also set up a museum. It's quite unusual because normally archive departments do not set up any museums. So they set up a museum. What is the concept in this museum? And I also heard that they are setting up certain things about Maharana Pratap and Shivaji. Please tell me more about it. हरेंद्र जी, it is document museum and it is first document museum of India. ये कॉन्सेप्ट पे 10 साल दस्तावेज का संग्रहालय बनाना है। दस्तावेज बहुत नीरस चीज होती है, आप उसको जब, और वो भी जब वो पर्शियन में या देसी राजस्थान की विभिन्न जो देसी जो लैंग्वेज है उसमें, मुड़िया लिपि में या महाजनी वो मारवाड़ी में हो, वो ढूंढाड़ी में हो, वो हाड़ौती में हो, बांगड़ी में हो, और वो मेवाती में हो, उसको पढ़ना और देखना बहुत नीरस है। अब उसको किस प्रकार से म्यूजियम के रूप में लोगों को जोड़ा जाए। हमने अभी 20 अगस्त 2020 को 21 को ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने हमारे अभिलेख संग्रहालय का वर्चुअल उद्घाटन कर दिया। इसके अंदर हमने 6-7 गैलरीज बनाई है, दस्तावेज गैलरी। उस दस्तावेज गैलरी में 100-150 वो फरमान, ओरिजिनल फरमान, निशान, मंसूर जो मुगल बादशाह या उनके परिवार के सदस्यों ने लिखे, उनको उनके कैप्शन हिंदी और इंग्लिश सहित वहां डिस्प्ले किया। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चौपनिया, फौजी, शाह हजूर, वकील रिपोर्ट, अखबारात दरबार मोहल्ला, हिस्टोरिकल बहिया, इन सब को ओरिजिनल दस्तावेज गैलरी में लगाया गया। इसी के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की दरगाह बनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर के किले में घेर लिया। 1665 ईस्वी के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज को औरंगजेब आलमगीर के साथ संधि करने के लिए तैयार कर लिया, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। इतिहास में सबसे चर्चित संधि है ये, और सबसे लंबी 22 फीट लंबी, और 99 लाइन जो पर्शियन में लिखी हुई है। राज्य अभिलेखागार ने उसको भी ट्रांसलेट करके बुक के रूप में पब्लिश कर दिया। उस संधि में शर्तें, छत्रपति शिवाजी महाराज 24 गांव औरंगजेब को दे देंगे, और क्या उनके पास रहेगा, कितना औरंगजेब देगा। हाँ, उस संधि में पर्सनल अपीयरेंस से छत्रपति शिवाजी महाराज को छूट दी गई थी। एक मेहंदी का पंजा जो उस समय दोस्ती और संगठन का प्रतीक था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को भेजा। इसके अलावा मिर्जा राजा जय सिंह को यह ताकीद थी कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज से निपटने के पश्चात बीजापुर पर अटैक करेंगे, तो बीजापुर अटैक के लिए क्या प्लानिंग थी वो भी उस संधि में लिखी हुई थी। 22 फीट लंबी संधि को म्यूजियम के अंदर स्पेशल केस के अंदर स्पेशल इसके लिए वो तख्त बनाया गया इसको डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन इतिहास कुछ और कह रहा है कि 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में आगरा में आए। वो आए तो उनके साथ कितने हाथी घोड़े थे, कितना साजो सामान था, और औरंगजेब के दरबार में उनको स्टेटस के हिसाब से खड़ा नहीं किया गया, तो वो उस दरबार को छोड़कर चले गए और उनको कैद कर लिया गया। इतिहास उस कैद से निकलवाने में मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह जी का हाथ रहा। मैं आपको वहीं आ रहा हूं। मैं इतिहास की उन घटनाओं को छूने की कोशिश कर रहा हूं, स्पर्श करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज तक इतिहास जगत के सामने नहीं आई। छत्रपति शिवाजी महाराज को जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पीछे खड़ा कर दिया गया और 5000 मनसब में खड़ा कर दिया गया, जबकि उनको कहा गया था कि आपको वही सम्मान दिया जाएगा एक राजा को दिया जाता है, और सर्वोच्च मनसब की लाइन में खड़ा किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज आंखें क्रोध से लाल हो गई। औरंगजेब आलमगीर सामने बैठे हुए ये सब देख रहे थे। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को कहा, शिवा को देखो, उनकी तबीयत
क्या खराब है? छत्रपति शिवाजी महाराज जब जगह से खड़े हो गए और उन्होंने औरंगजेब आलमगीर को उस समय पीठ दिखाकर दरबार छोड़ रहे थे। जयपुर के राजा राम सिंह ने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हारे बाप को देखा, तुम्हारे पाती शाह को देखा। बादशाह को पाती शाह कहते, तुम्हारे पाती शाह को देखा। मुझे मारना है तो मार दो, कैद करना है तो कैद कर दो, मुझे तुम्हारे पाती शाह की हजूरी मंजूर नहीं। ये सारी आंखों देखी घटना जयपुर के वकील प्रकाश दास ने लिखी वकील रिपोर्ट के अंदर, और वो वकील रिपोर्ट ओरिजिनल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो दीर्घा बनाई उसमें लगी थी। और अभी कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के और अन्य कार्यक्रम थे। लोग आज बनावटी इतिहास बनाते हैं, अनेकों नई चीज़ें ऐड करते हैं खुद के अपने एजेंडे के हिसाब से, बट उस ज़माने में लोगों ने अपने नज़रिए से कैसे देखा होगा, उस पर जाने और उसको समझने का जो सोर्स है उसको आपने दुनिया के लिए खोल दिया। मैंने कहीं किसी कवि की लाइन पढ़ी, उस कवि ने ये कहा कि मैं उस खिड़की की तरह हूँ जिसमें आकर जब तुम खड़े होते हो, मैं उस खिड़की की तरह हूँ जिसमें जब आकर तुम खड़े होते हो तो सारी दुनिया, सारी कायनात तुम्हें नजर आती है। जो आर्काइव डिपार्टमेंट, जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है, जो इंटरनेट पे बेस्ड अवेलेबल है अब, उसका ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि दुनिया में यदि आप उस खिड़की पे आकर खड़े होते हो तो आपको इतिहास का वो सारा कायनात दिखाई पड़ता है। हरेंद्र जी, मैं इस बात को थोड़ा कंप्लीट कर दूं वरना इतिहास अधूरा रह जाएगा। हाँ, फरमाइए आप। कि छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए, आगरा से निकल गई, बहुत चर्चित घटना है। तो औरंगजेब ने जो दक्षिण में भेजा राजा जयसिंह थे उनको एक फरमान लिखा, वो फरमान अब नहीं है, वो शायद नष्ट हो गया होगा। लेकिन अभिलेखागार की अखबारात दरबार मोहल्ला जो पर्शियन सीरीज है, अखबारात दरबार मोहल्ला उस समय का न्यूज़पेपर था। पूरे मुगल साम्राज्य की दिल्ली की घटनाएं होती थी, वो सारी एक जगह दिल्ली में, आगरा में आती थी और उनको इकट्ठा किया जाता था। उसके अंदर उसकी समरी मिल गई हमें। तो औरंगजेब क्या लिखता है, देखिए कि तुमने इतनी मुश्किल से शिवा को पकड़ा, मिर्जा जय सिंह को, जो उसने फरमान लिखा वो फरमान नहीं है लेकिन उसकी समरी मिली कि तुमने इतनी मुश्किल से शिवा को पकड़ा लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसको भगा दिया। मेरी इच्छा तो हो रही है कि खाल उधेड़कर पूरे आगरा में घुमाऊं, लेकिन तुम हमारे सबसे विश्वस्त मनसबदार हो, इसलिए मैं इसके सारे मनसब पद से इसको पदच्युत कर रहा हूं और इसको जीवित छोड़ रहा हूं। तुम्हें अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए। ये दस्तावेज आज तक कभी प्रकाश में नहीं आया था, अभिलेखागार ने इसको अपने म्यूजियम का हिस्सा बना दिया। बहुत बढ़िया। इस कुछ लेखक हैं जिन्हें मैं जानता हूं, मैं डेफिनेटली उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो इस सोर्स का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट चीज़ पूछना चाहता हूं कि जो अभी आपने कहा कि इतने सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं इन चीज़ों को, पुरानी लिपि को पढ़ते हैं, क्या आर्काइव डिपार्टमेंट के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जो इन पुरानी चीज़ों को पढ़कर उनको ट्रांसलेशन करते हैं? अभिलेखागार के पास थे कुछ लोग, लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। कुछ कहते हैं ना, अच्छे लोगों को ईश्वर जल्द अपने पास बुला लेता है। लेकिन हम 4-5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ इस अलग अलग जो राजस्थानी की बोलियां हैं इनका एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। सीडेक जो है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है, सीडेक के साथ मिलके हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं राजस्थानी के इन सॉफ्टवेयर को बनाने के और राजस्थानी को सिखाने के ऐप बनाने के। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की बजट घोषणा 2019-20 की बजट घोषणा का हिस्सा है कि विभिन्न राजस्थानी की बोलियां हैं, इसका एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। और आप हैरान रहेंगे कि जब उस सॉफ्टवेयर का कन्वर्टर जब राजस्थान आर्काइव्स की ऑनलाइन वेब पोर्टल पर लगेगा तो आप किसी भी दस्तावेज को, राजस्थानी हो चाहे मारवाड़ी हो चाहे ढूंढानी हो चाहे बांगड़ी हो, आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सोच जगत के लिए एक बड़ी क्रांति होगी वो दिन जिस दिन ये सॉफ्टवेयर तैयार। मैं आपसे 100% सहमत हूँ इस चीज़ से। मैं सवाल पूछना ये चाह रहा था कि क्या हम नए लोगों को क्रिएट कर रहे हैं, पर शायद मैं 20वीं शताब्दी की सोच में था कि हमें नए लोगों को स्किल देनी चाहिए, उनको डेवलप करना चाहिए कि वो इन चीज़ों को पढ़ सकें। आपकी जो सोच है वो 21वीं शताब्दी की है कि न सिर्फ लोगों को बल्कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना देना चाहिए कि जो युगों युगों तक इसे पढ़ता रहेगा। आई होप
हम We ऐप will have that मारवाड़ी जो software very पुरानी वाली soon. I hope we पुरानी will have वाली that software मारवाड़ी very जो soon. और उस सॉफ्टवेयर में लोगों का बड़ा फायदा होगा। मैंने देखा है कि हम लैंग्वेज के लिए, राजस्थानी के लिए मैंने बहुत लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है, पर मेरा ये भी मानना है कि वो भाषा तभी जिंदा रह सकती है जब आप उसमें नई चीज़ें क्रिएट करें नई और पुरानी जनरेशन चीज़ों को नए जमाने के हिसाब से ढालें। पर ज़्यादातर जो कोशिशें हैं वो राजनीतिक या पॉलिटिकल कोशिशें हैं, पर वो कोशिशें जो साहित्यिक और टेक्निकल कोशिशें होनी चाहिए, शायद उस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पर ये सॉफ्टवेयर ज़रूर हो सकता है कि एक गेम चेंजर हो इस पूरे कार्यक्रम में। आपने ठीक फरमाया हरिंदर सिंह जी कि ये 21वीं मतलब आगे की सोच है, लेकिन हम एक ऐप बना रहे हैं उसी पुरानी मारवाड़ी को सीखने का, और उस ऐप को कोई भी फ्री में डाउनलोड कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी है कि हम जो पुरानी जो हमारे पास रियासतों की जो दस्तावेज हैं उनको हम धन से वित्त से जोड़ रहे हैं। जिस किसी भी चीज को अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको फाइनेंस से जोड़ दीजिए, और फाइनेंस से जोड़ने के बाद में लोग जो है, नए स्कॉलर्स हैं, नए लोग हैं, उसको अपने आजीविका का साधन बनाएंगे, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें नए लोग, नए लड़के इस लैंग्वेज को सीखने वाले हमें मिल रहे हैं। जरूर उसकी संख्या कम है, जरूर उसकी जो गति है वो थोड़ी कम है, लेकिन आने वाले समय में बहुत तेजी से हमें इस भाषा की बड़ी संख्या में जानकार मिलेंगे। बहुत बढ़िया। इन सारी चीज़ों के बारे में कि मुझे पता है कि ऐसे कोई 2-4 दस्तावेज हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं या बहुत फेमस हुए हैं या जनमानस ने उनको बड़े तेजी से स्वीकारा है। मैं 2-3 के एग्जाम्पल आपसे लेना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं कि 220 साल पहले जोधपुर के महाराजा थे मान सिंह, जो उनकी एक प्रेमिका जो नाथ संप्रदाय में बहुत गहरी आस्था रखते थे। थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी एक प्रेमिका थी सुखसेन राय। ये और सुखसेन राय ने उनको एक पत्र लिखा जो जिसको प्रेम पत्र के रूप में वो पूरे इतिहास जगत में और दुनिया में मशहूर है। आप उस प्रेम पत्र की जो मूल है वो यही है कि बहुत दिन से श्री महाराज के दर्शन नहीं हुए, इसलिए मैं दर्शन करना चाहती हूँ और मुझे चिंता हुई आपकी हालात को लेकर। लेकिन आप देखिए, महिला 220 साल पहले, आप राजस्थानी की स्ट्रेंथ को देखिए, राजस्थान की कल्चर की स्ट्रेंथ को देखिए, उसकी भाषा की स्ट्रेंथ को देखिए। 220 साल पहले वो इस संदेश से पहले 108 राजस्थानी मुहावरों का, 108 राजस्थानी उपमाओं का इस्तेमाल करती है। श्री 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 108 जय जलंधर नाथ जी, माथेरा मोड़, उगता हुआ सूरज, ढलती नथरा मोती, मतलब 108 राजस्थानी उपमाओं। और बाद में वो ये कहती है कि बहुत दिन से मुझे आपके दर्शन नहीं। अब मतलब प्रेम पत्र की खूबसूरती को देखिए, राजस्थानी भाषा की रिचनेस और स्ट्रेंथ को देखिए। आदमी एक तारीफ में खुश हो सकता है, 108 बार यदि किसी को उपमाएं दी जाए तो पत्र का मूल भाव आने से पहले ही आदमी क्या कह सकते हैं कि बिछ जाता है। तो वो यदि आप कुछ और उपमाएं बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अमेरिका की एक महिला राजस्थान की उन पुराना रियासत काल की जो महिलाएं थी, उनके एजुकेशन के ऊपर रिसर्च कर रही थी। जब उसको ये पत्र हाथ में आया, उसने अपनी फ्रंट पेज का तो बनाया ही आर्काइव से परमिशन लेके, लेकिन उसने कहा कि 220 साल पहले महिलाएं इतनी अच्छे तरीके से पत्र लिखती थी जो आज भी नहीं लिख पाती है। आज जो डिजिटल युग आ रहा है, मोबाइल, उसके बाद उन्होंने गुलाब राय का भी पत्र, उसी समय में मान सिंह जी के टाइम में गुलाब राय थी, उसका भी पत्र है, वो भी आर्काइव में। तो उसने इस तरह के काफी पत्र राजपुताना से इकट्ठे किए और अपने थीसिस का हिस्सा बनाए। तो मुझे लगता है कि लोग खैर गलत नहीं कहते कि राजस्थान संत, सूरमाओं और प्रेम की भी धरती है। और मुझे लगता है कि जो इतने सारे प्रेम पत्र लिखे गए हैं, जो आजकल हम आर्चीज की गैलरी में या नए मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स पे ढूंढते हैं, जब उन लोगों को ऐसा पता चलेगा कि इतना अथाह भंडार इस
आर्काइव्स में 200-300 साल पहले लोगों ने लिखा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही 14 फ़ैब थी, जिसे हम वैलेंटाइन डे कहते हैं। मुझे लगता है कि आपके इस आर्काइव्स डिपार्टमेंट में तो वैलेंटाइन डे से पहले एक भयंकर ट्रैफिक होगा, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि वो कोई नई उपमाएँ ढूँढे। वो 108 एक स्त्री ने लिखी, वो भी पढ़ी लिखी स्त्री नहीं थी। तो आप सोचो कि और दूसरी स्त्रियों ने कितने प्रेम पत्र लिखे होंगे, जिनमें कितनी उपमाएं हो रही होंगी। एक चीज़ है, राजस्थान के बारे में और ब्रिटेन के बारे में यदि बात की जाए और आर्काइव्स के बारे में बात की जाए, तो एक आदमी का जिक्र बहुत ज़रूरी है। बचपन में मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं और मेरे खुद के एरिया से इसलिए लगाव हुआ क्योंकि उन्होंने उस एरिया के बारे में बहुत विस्तार से लिखा। उस ज़माने में जब लोग इतिहास बनाने में विश्वास रखते थे और इतिहास जीने में विश्वास रखते थे, वो राजपूताना में आए, उन्होंने उस इतिहास को लिखने और संवारने में विश्वास दिलाया। वो है कर्नल जेम्स टॉड। वो स्पेशल रीजेंट थे, ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश क्वीन के सर्वेंट थे। राजपूताना में उनको पोस्टेड किया गया। उन्होंने राजपूताना, मालवा, गुजरात, इस पूरे एरिया पर उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी। उसके बारे में मैं सोचता हूँ यदि आप कुछ डिटेल में कहेंगे, इट विल बी ए रियली ग्रेट लिंक। हरेंद्र जी, कर्नल जेम्स टॉड को जहां तक मेरा है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी शोधार्थी नहीं होगा जो कर्नल जेम्स टॉड के नाम से परिचित ना हो। आज भी जोधपुर के पास में, अजमेर के पास में है भीम नामक जगह है, और भीम से करीबन 4-5 किलोमीटर ऊपर टॉडगढ़ है। कर्नल टॉड के नाम से बसा हुआ है टॉडगढ़। उसके अंदर उनकी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो उनकी राजस्थान के इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक थी, उसकी मूल 2 प्रतियां वहां आज भी सुरक्षित है, ऐसा कहा जाता है। और ये बात हकीकत है कि एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ऑरल हिस्ट्री पर कर्नल टॉड जहां भी गए, उन्होंने लोगों से बात की और उन बातों को उन्होंने नोट्स बनाए, और नोट्स बनाने के बाद जब वो इंग्लैंड आ गए तो उन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को उन्होंने लिखना शुरू किया, और मुझे भी उसको पढ़ने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितना खूबसूरती से उस समय की जातियों का विश्लेषण किया, जितना खूबसूरती से उन्होंने उस समय के ठिकानों में कि राजनीतिक, पॉलिटिकल और वार हिस्ट्री का उन्होंने जो विश्लेषण किया, इतना सटीक था कि ये विश्वास नहीं होता कि कोई सेना का कैप्टन है या जाना माना इतिहासकार है। हालांकि उन्होंने बीकानेर के बारे में, बीकानेर नहीं आ पाए थे, और बीकानेर का इतिहास एनल्स एंड एंटिक्विटीज में नहीं है। जब उन्होंने बीकानेर के बारे में किसी से पूछा तो उन्होंने, किसी ने कह दिया कि साहब ये तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकाना नहीं है, और उन्होंने उसका जिक्र भी अपने पुस्तक में कर दिया। तो बीकानेर के महाराजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बीकानेर का किसी मायने में अपने आप को जोधपुर से कम नहीं समझते थे। उन्होंने अपने एक अधिकारी दयाल दास, जो उनका अधिकारी था, जिसको उन्होंने सारे फैक्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए और बीकानेर का इतिहास लिखाया। दयाल दास के क्या बीकानेर का प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक हिस्ट्री है, प्रामाणिक इतिहास है। दयालदास जी की किताब के बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत प्रामाणिक किताब है और बहुत शोध के बाद उन्होंने लिखी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि समय का चक्र सारी चीज़ों को समेट देता है, उन्हें ठीक कर देता है। हो सकता है कर्नल जेम्स टॉड उस पॉइंट को मिस कर गए कि मैं बीकानेर छोटी जगह है, वहाँ पर जाकर क्यों लिखूं, या उनको कुछ लोगों ने ऐसा कहा। पर पता है, विशेष बात यह है कि उन्हें नहीं पता था कि 2000 के बाद कुछ लोग आएंगे, उन्होंने जो किताबें लिखी उन सारी किताबों को डिजिटाइजेशन करके बीकानेर में बेस कर देंगे। वो शायद उन्हें नहीं पता था, पर ये समय के रथ का पहिया है। समय इसी तरह से चलता रहता है, हमारे पास समय की बहुत कमी है। लेकिन इतिहास जगत में हरेंद्र जी, इतिहास जगत के अंदर कर्नल जेम्स टॉड के बाद में ऑथेंटिक राजस्थान की ऑथेंटिक हिस्ट्री के लिए लगातार मांग उठती रही, और आर्काइव ने एंशिएंट राजस्थान, मिडाइवल राजस्थान और मॉडर्न राजस्थान के ऊपर, ऑथेंटिक हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखवाई। फर्स्ट एंशिएंट राजस्थान प्रोफेसर दशरथ शर्मा से लिखवाई, मिडाइवल डॉक्टर प्रोफेसर गोपीनाथ जी से लिखाई, और मॉडर्न जो है
वो प्रोफेसर एम एस जैन साहब से लिखा मैं इन और सारी ये किताबें जो आपने मेंशन की है, एज ए वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये राजस्थान का प्रमाणिक ऑथेंटिक हिस्ट्री है। जो आपने मेंशन की है, मेरी इच्छा है मैं खुद उन्हें पढूं, उन्हें आत्मसात करूं, उन क्षणों में, उन पलों में जीऊं। पर जो आर्काइव्स का जो काम है, ये एक बहुत बड़ा काम है। इससे हम दुनिया के उस नए नज़रिए के सामने इन सारी चीज़ों को रख सकते हैं कि इतिहास में असलियत में क्या हुआ होगा और क्या बाकी श्रृंगार है, बाकी सारी रूप की अलग अलग बातें हैं, पर असलियत में क्या हुई होंगी। मैं आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र खड़गावत साहब जिन्होंने हमारे साथ शिरकत की, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा उस हीरोइक काम के लिए, उस हरक्यूलियन टास्क के लिए कि वो इस काम को हमेशा आगे करें और हम उस आर्काइव्स का हमेशा फ़ायदा उठाएं। ये ब्रिटिश और इंडियन दोनों हिस्ट्रीज़ को एक साथ कंबाइन करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज के कार्यक्रम बस इतना ही। हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते थेम स्पीक्स के इस नई कड़ी में। धन्यवाद। गुड नाइट।